Yes, welcome back to the discussion. We'll be starting with suits in general. Before coming to the discussion of this topic, suits in general, we have to understand the various relevant concepts of civil procedure code. That is number one, which relates to, write down, which relates to jurisdiction. Jurisdiction. Then further we'll understand the concept of res sub judice. Next we'll start with res judicata. Right? So these are the fundamental important topics which will be dealt in the first part, that is jurisdiction, res sub judice and res judicata, and in different sections. Now coming to the discussion of jurisdiction, what actually it means. Jurisdiction means authority of the court, to decide a dispute, So until and unless a particular civil court is not having jurisdiction, how can it proceed with a particular suit? First of all, the jurisdictional point has to be satisfied. Whether a particular court is having jurisdiction or not, the plaintiff should state in the plaint, yes, under the above circumstances, this court is having jurisdiction. So, jurisdiction is a point of law. And the first point, it is saying that in section 9, it is saying that courts to try all suit unless barred. Yes, the civil courts are having jurisdiction to entertain civil suits which are expressly provided, but in some matters where civil court cannot interfere, it means if there is no such express provision made under CPC, then it is expressly barred, or if it is impliedly barred, then it is a case of impliedly barred in jurisdictional point. So civil suits are generally entertained by civil courts, but which matters are expressly or impliedly barred? Now taking reference of the matters which are being dealt by tribunals, by virtue of Article 323 of the Constitution of India, there is establishment of tribunals. Now those tribunals which are particularly made for dealing with a particular nature of case, like debt recovery tribunal, like green tribunal, like national company law tribunal. So these tribunals deals with a particular nature of case. So suppose if you're dealing with a case relating to company, a matter which is related to a company issue, obviously that type of matter should not be filed to the civil court and unnecessarily burden the civil court. So section 9 is stating that the court shall have jurisdiction. The court shall have jurisdiction to try all suits of civil nature, excepting suits of which their cognizance is expressly or impliedly barred. Expressly or impliedly barred. See section 9, it has been written. So civil suit पहले आपको समझना है what is a civil suit. Whether it relates to immovable property, whether it's related to movable property, whether a suit is for foreclosure, sale or redemption, whether a suit for partition, yes, these are all civil natures. But when a suit is related to a matrimonial suit, can a civil court entertain the matter? Yes, a purely civil court cannot entertain, but then as the nature of the case is a civil suit, it is being filed before the district court. But you cannot relate a particular matrimonial dispute with a case related to immovable property. एक प्रॉपर्टी लेके जो डिस्प्यूट हो रहा है और एक
हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है तो उसमें अंतर है, बट नेचर एक ही है, ये तो लॉ कहलाता है, दैट इज सिविल सूट। सो कमिंग टू द फर्दर डिस्कशन, सेक्शन 9 कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सूट्स of civil nature. Now, what are actually suits of civil nature? Can some examples be given? Obviously, some example be given. Take an example of suits related to right to property. Right to property. Next, suits relating to right of worship. Then suits relating to suits relating to partition. You can write suits relating to वो प्रॉपर्टी में आ जाता है, suits relating to specific performance of contracts. नेक्स्ट आता है आपका suits for rents. देखो, actually I am trying to give you some illustrations in order to understand the suits related to civil nature. Suits are also related to various types like matrimonial matters also, but these type of matters are actually entertained by district courts, not purely civil in nature. If you want to locate what is a civil suit, you have to go with the illustrations. Whenever there is a dispute of a property related issue, whenever there is a dispute related to a rental issue, whenever there is a dispute between a landlord and a tenant regarding a particular property, wherever there is a suit related to specific performance of contract, obviously it should strike in your mind that the matter is purely civil in nature. Matter is purely civil in nature. So wherever it has been expressly barred or impliedly barred that civil court has no power to take cognizance of those cases, the civil court has no power to interfere in those issues related to company law cases, related to consumer law forum, related to army tribunal, related to criminal procedure cases. Suppose an additional district judge is empowered to take up matters of matrimonial cases. So whenever there is a dispute of matrimonial cases, one should not go to national company law tribunal for obtaining any relief. That's a different thing, because NCLT वो मैटर में कभी कॉग्निजेंस है, इट इज एक्सप्रेसली बर्ड फॉर NCLT. वाइल आप सिविल कोर्ट में जाओगे तो सिविल कोर्ट भी कंपनी लॉ का मैटर नहीं देखेगा, क्योंकि उसके लिए अलग से स्टैट्यूट, अलग से कोर्ट प्रोवाइड किया है, अलग से कोर्ट प्रोवाइड किया है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ो तो उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का केस आपको मिलेगा. आप मोटर व्हीकल्स एक्ट में जाओगे तो उसका भी अलग से कोर्ट मिलेगा. सो मेरा इंटेंशन, मेरा बोलने का मतलब यही है, when there are some court, when there are some tribunals or judicature, when there is some administrative tribunals already made for dealing with particular matters, you cannot unnecessarily overburden the civil courts, because that is expressly or impliedly barred. So the court shall, subject to the provisions herein contained, have jurisdiction to try all suits of a civil nature, excepting suits of which the cognizance is either expressly or impliedly barred. Right? Now certain conditions are there. Write down the first two condition is that the two conditions for satisfying section 9. Two conditions for satisfying section 9 is, number 1, the suit must be of civil nature. Yes, ये तो आपको पहले कोर्ट के सामने एस्टेब्लिश करना है that the matter is coming under the ambit of civil matter. नेक्स्ट आएगा आपका
The cognizance of the suit should not have been expressly or impliedly barred. ये 2 पॉइंट आपको एस्टेब्लिश करना है. सो सूट्स ऑफ सिविल नेचर. टेक एन एग्जाम्पल. विच सूट्स आर नॉट ऑफ सिविल नेचर. देखो सूट का मतलब ऐसा नहीं है खाली सिविल नेचर होगा, सूट आउट ऑफ सिविल नेचर भी हो सकता है. सो सूट्स नॉट ऑफ सिविल नेचर. एग्जाम्पल, कौन सा होगा? टेक एन एग्जाम्पल. सूट्स इन्वॉल्विंग principally caste questions. It is not of civil nature because it is related to caste questions directly. Suits involving purely religious rites or ceremonies, not related to civil nature. Suits for recovery of voluntary payments or offerings. These are not suits of civil nature because they may be filed in some other courts but not in civil courts, as the cognizance is expressly and impliedly barred. Now we'll have some talk about the jurisdictions. See, in civil cases, while we talk about jurisdictions, the two things which will come in our mind, and that's important. When you talk about jurisdiction in civil courts, ये पहला एक पॉइंट जो आएगा, that is one, pecuniary jurisdiction, and the other one is jurisdiction as to subject matter. इसके अलावा भी आपका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बनता है, ओरिजिनल, एपिलेट, बहुत कुछ है, बट सिविल कोर्ट्स में ये दोनों जुरिस्डिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला है सब्जेक्ट मैटर और देन है पिक्यूनरी. थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं. देखो, सूट जब फाइल होता है तो उसका एक वैल्यूएशन होता है. सूट को वैल्यूएशन करना होता है, क्योंकि फोकट में तो कोई कोर्ट में नहीं आ सकता है. उसके लिए आपको केस फाइलिंग करना होगा, कोर्ट फीस देना होगा. तो जो कोर्ट फीस देता है ना, तो उसका हिसाब से आपका सूट का वैल्यूएशन होगा. Now whenever you are filing a suit relating to immovable property, obviously there should be a valuation of that property. उसके हिसाब से, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन का हिसाब से कितना कोर्ट फीस चढ़ेगा आपको भरना पड़ेगा. डेफिसिट कोर्ट फीस दिया तो आपका मैटर प्रोसीड नहीं हो सकता है. यू हैव टू पे द प्रॉपर कोर्ट फीस. इसका रेफरेंस आपको मिलेगा बंगाल आगरा आसाम स्टैम्प ड्यूटी कोर्ट फीस एक्ट, बंगाल आगरा आसाम कोर्ट फीस एक्ट. आप जाओगे उसको मिलेगा आपको क्या कितना, मतलब बंगाल में कैसा कोर्ट फीस चलता है, आगरा, आसाम. तो कोर्ट फीस रिलेटेड, कोर्ट फीस एक इंपॉर्टेंट चीज होता है. और पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. कहां मिलेगा आपको? सेक्शन 6 में मिलेगा, सीपीसी में. सेक्शन 6 थोड़ा चले जाओ. व्हाट इज रिटन इन सेक्शन 6? सी, सेक्शन 6 इज टॉकिंग अबाउट पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन. सेव इन सो फार as is otherwise expressly provided. Nothing herein contained shall operate to give any court jurisdiction over suits
द अमाउंट और वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, क्या बोला, वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर which exceeds the pecuniary limits of its ordinary jurisdiction, of its ordinary jurisdiction, of its ordinary jurisdiction. Now बात है क्या, स्मॉल, जैसे मान लो स्मॉल causes court can entertain those suits whose subject matter value is 10,000, 10,000 के ऊपर वो jurisdiction उसका नहीं बनता है. So suits which are valued up till 10,000, those matters can be entertained by the small causes court. उससे ऊपर आप जाओगे तो सिविल जज बैठा है, सीनियर सिविल जज बैठा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बैठा है, तो ये होता है पिक्यूनरी, सूट्स को वैल्यूएशन करके होता है. नहीं तो कोई भी छोटा मामला लेके कोई बड़ा कोर्ट में चला जाएगा, कोई भी बड़ा मामला लेके कोई छोटा कोर्ट में चला जाएगा. इफ यू आर सपोज टेक एन एग्जांपल, if you are filing a suit before a small causes court and the value of the subject matter is 2.5 lakh, is the small causes court eligible for entertaining and trying the suit? The answer is no, नहीं देख पाएगा क्योंकि jurisdiction नहीं बनता है. और एक होता है jurisdiction as to subject matter, ये होता है subject matter को हिसाब से. आपका प्रॉपर्टी मान लो झारखंड में कोई भी डिस्ट्रिक्ट में आपका ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, तो आपका जुरिस्डिक्शन कहां बनेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑफ द प्रॉपर्टी. तो ये भी एक सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शनल पॉइंट से डिटर्मिनेशन होता है कि सब्जेक्ट मैटर जहां सिचुएटेड होता है वही केस करने में फायदा होता है फॉर द प्लेंटिफ. ऐसा भी हो सकता है जुरिस्डिक्शन चेंज हो सकता है. मान लो डिफेंडेंट रहता है कोई दूसरा जगह वेस्ट बंगाल में, तो द प्लेंटिफ हैज टू और मोर ऑप्शंस, आइदर टू फाइल द केस एट झारखंड एज द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट इज हैविंग सम प्रॉपर्टी, or he can has the option to file in West Bengal also if the defendant is residing temporarily, if the defendant is having some business in West Bengal, then the jurisdictional point can be satisfied. But convenience के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ कौन केस करेगा, right? Coming to section 10 and section 11. So before coming to section 10 and section 11, first we should understand section 11. Automatically section 10 भी clear हो जाएगा. section 11 देखो very important, और ये जुडिशरी आपका लॉ एग्जामिनेशन में तो आता ही है. section 11, उसके बाद section 10 I will clear. section 11 is talking about res judicata, right? What is res judicata? इसका कुछ एसेंशियल्स कंडीशंस है. पहले रेस जुडिकाटा एक प्लेन मीनिंग समझो, कोई भी केस में जब जजमेंट डिक्री ऑर्डर हो गया, कोई भी केस में जब एक बार कोर्ट ने डिक्री पास कर दिया, वही सेम केस सेम पार्टी के बीच में दोबारा कोर्ट नहीं सुनेगा. वो मान लो सेम कोर्ट बोलो क्या दूसरा कोर्ट बोलो, बिकॉज ऑलरेडी द मैटर बिटवीन द सेम पार्टीज in relation to the same title was actually disposed of. The court has passed the decree. So subsequently, again if the same parties are litigating in some other courts or in the same court, the matter will be barred by the principles, by the doctrine of res judicata. दोबारा कोर्ट नहीं सुनेगा. It means you are harassing the court, you are harassing the defendant, you are causing wastage of time. So there should be an end of litigation. There should be, the objective is end of litigation. Okay. Let's see what are the principles of res judicata. एक minute. Yes. What is रेस जुडिकाटा? थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं. तो मेरा कहने का मतलब क्या है, रेस जुडिकाटा में क्या है, मान लो कोई केस में जजमेंट
डिक्री कोर्ट ने ऑलरेडी सुना दिया, जजमेंट डिक्री कोर्ट ने ऑलरेडी सुना दिया कोई भी केस में, तो वही सेम केस में फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं होगा, नहीं सुनेगा कोर्ट। सो कोई भी जजमेंट डिक्री कोर्ट ने पास किया इन एनी मैटर, further proceedings cannot be done on the same issue, cannot be done। तो ये जो एक्चुअल प्रिंसिपल है, ये रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 में एक डॉक्ट्रिन है जिसके हिसाब से द कोर्ट विल नॉट एंटरटेन the same matter between the same parties which previously has been disposed of by the court। That means you are again trying to harass, nothing more than that। That is multiple litigation हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए डॉक्ट्रिन को यूज करना पड़ता है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केसेस भी डील हुआ है। तो ये सेक्शन 11 का कुछ रेलिवेंस आपको कुछ सिमिलर सेक्शंस में मिल सकता है, जैसे आपको सीआरपीसी को देखना पड़ेगा, सेक्शन 300 देखना पड़ेगा। आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका रेफरेंस है, डबल जियोपार्डे, उसका भी डबल जियोपार्डे मतलब क्या है, अ पर्सन कैनॉट बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। एक ही व्यक्ति को एक ही ऑफेंस में आप दोबारा उसको पनिश नहीं कर सकते हो। सो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका आर्टिकल 22 में दिया है, और इंडियन एविडेंस एक्ट का हिसाब से आपको प्रमाण करना पड़ेगा, सेक्शन 40, क्या द सब्सिक्वेंट सूट शुड बी बर्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकाटा। आपको सेक्शन 40 इंडियन एविडेंस एक्ट को भी लेना पड़ेगा। ये रेफरेंस में ले रहे हो क्योंकि खाली सेक्शन 11 पढ़ के कुछ आपको समझ में आएगा, बट यू शुड नो द रेफरेंसेस, द अपरूटिंग्स, किसके साथ क्या लिंक है, ये भी आपको मैं इधर दिखा रहा हूं। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। 5 एसेंशियल पॉइंट्स है। एसेंशियल्स क्या क्या है, लेट अस सी। पहला है कॉम्पिटेंट, आपका सेकंड है सेम पार्टी, थर्ड है सेम टाइटल, फोर्थ है जजमेंट डिक्री ऑब्टेंड हो गया, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फर्दर प्रोसीडिंग्स कैनॉट बी डन। तो टेक एन एग्जाम्पल, ए was plaintiff, filed a suit against B the defendant. The suit was related to payment of money. The matter was decreed in favor of A. The court ordered B to repay the full amount to A together with interest. Decree मिल गया और B ने पैसा भी दे दिया। अभी फिर से A ने कोई दूसरा कोर्ट में जाके वही मैटर में वही पैसा लेके सेकेंड टाइम सब्सिक्वेंट मामला किया। कैन द सेकेंड सब्सिक्वेंट सूट बी प्रोसीड? नो सर। बात क्यों नहीं? बिकॉज पहला वाला जो डिसीजन था वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट दिया है। तो एक एसेंशियल पॉइंट क्या है, द फॉर्मर सूट was dealt by a competent court of jurisdiction. Despite the fact the subsequent suit has been filed before the competent court, competency लेके बात है, competency को लेके आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 6, सेक्शन 9। competency वर्ड कहाँ आता है? jurisdictional point से आएगा। whether the court has the power to take cognizance of the offense or not, jurisdictional point को satisfy करना पड़ेगा। उसके साथ साथ कोर्ट का competency आप धीरे धीरे अंडरस्टैंड करोगे। नेक्स्ट, सेम पार्टी के बीच में ये केस चल रहा है। सेम पार्टी,
और सेम टाइटल को लेके ही दोबारा मामला किया है और पहले का केस में जजमेंट डिक्री दे दिया था, इसके कारण फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं होगा, इसके लिए फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं होगा। सेक्शन 11 का आपका 8 एक्सप्लेनेशन है, पहले देख लेते व्हाट आर द 8 एक्सप्लेनेशंस। एक्सप्लेनेशंस वो आपका दिया है सेक्शन 11 का अंडर। एक्सप्लेनेशन 1 पहले क्या बोल रहा है, व्हाट इट इज सेइंग एक्चुअली, इट इज सेइंग एक्चुअली अबाउट प्रीवियस द फॉर्मर सूट, प्रीवियस फॉर्मर सूट। तो सेक्शन 10 सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन 1 देखो तो आपका क्लियर हो जाएगा शायद। लेट अस सी एंड रीड। Expression 1 is saying that the expression former suit shall denote a suit. आप देखो बेयर एक्ट, the expression former suit shall denote a suit which has been decided. बात क्या है, which has been decided, which has been decided prior to the suit in currently in question as to the right of appeal from the decision of such court. तो पहला वाला जो सूट चल रहा था वो ऑलरेडी डिसाइड हो गया, तो ये प्रीवियस फॉर्मर सूट डिसाइड हो गया प्रायर टू द सूट इन क्वेश्चन, प्रायर टू द सूट इन क्वेश्चन। तो सूट इन क्वेश्चन कौन सा है, करेंटली जो सेम मैटर सेम पार्टी फाइल किया है सेम चीज के ऊपर, तो वो प्रीवियस पहला फॉर्मर सूट बन जाता है, नंबर 1। उसके कारण सेकेंड सूट विल बॉर्ड बाय रेस जुडिकाटा, द डॉक्ट्रिन विल गेट द एसेंस फ्रॉम दिस प्रीवियस फॉर्मर सूट, उसके कारण ही हो रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ प्रीवियस फॉर्मर सूट, ये जो बात मैंने बोला इसके हिसाब से ही आपको मैं थोड़ा सेक्शन 10 का कंट्राडिक्शन कर रहा हूं। देखो सेक्शन 10 में बात तो एकदम सही बोला, खाली एक जगह डिफरेंस बोला। डिफरेंस क्या है इसमें, मैंने क्या बोला, प्रीवियस और फॉर्मर वाला सूट ऑलरेडी कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, प्रीवियस फॉर्मर सूट ऑलरेडी कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। बट इन सेक्शन 10 व्हिच इज टॉकिंग अबाउट रेस सब जुडाइस स्टे ऑफ सूट, आपका सेक्शंस में लिखा है स्टे ऑफ सूट सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 में डिफरेंस यही है, पहले का केस अभी भी पेंडिंग है, तो प्रीवियस सूट फॉर्मर सूट इन सेक्शन 11 इज डिसाइडेड, प्रीवियस सूट फॉर्मर सूट इन सेक्शन 11 इज नॉट डिसाइडेड, अभी भी पेंडिंग है। सो फिर से मैं बोल रहा हूं, सेक्शन 10 प्रीवियस वाला जो सूट था वो अभी पेंडिंग है, सेक्शन 11 में प्रीवियस सूट जो था वो डिसाइड हो गया है, वो डिसाइड हो गया है। ये दोनों के ऊपर आपका कॉन्ट्राडिक्शन आता है। तो उसके लिए दोबारा मान लो सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया, ले सकता है कोर्ट कैन एडमिट, बट कोर्ट विल नॉट प्रोसीड। सेक्शन 10 के साथ सेक्शन 11 का जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो तो प्रीवियस सूट को लेके है। एक प्रीवियस सूट डिसाइड हो गया रेस जुडिकाटा में, और सब रेस जुडाइस स्टे ऑफ सूट में अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, तो इसका डिसाइड होने का वजह से सब्सिक्वेंट सूट बर्ड हो रहा है, बट मतलब कॉग्निजेंसी नहीं लेगा कोर्ट, कॉग्निजेंसी नहीं लेगा। बट इधर में जो प्रीवियस सूट जो पेंडिंग है, इसका पेंडिंग का वजह से सूट एडमिट कर सकता है बट प्रोसीड नहीं करेगा, सूट एडमिट कर सकता है बट प्रोसीड नहीं करेगा। इधर में तो सूट एडमिट ही नहीं करेगा, सब्सिक्वेंट सूट विल बी बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। बट यस ऑब्वियसली ये किसका काम होगा, एडवर्स पार्टी का काम होगा। एडवर्स पार्टी को कोर्ट को रिमेंबर करना होगा क्या, इस केस का जो मेन मूल मंत्र है ये ऑलरेडी डिसाइड हो गया था, ये फिर से दोबारा हरस करने के लिए फिर से कोई दूसरा कोर्ट में फाइल किया, और इस कोर्ट जो मैटर देख रहा है दैट शुड बी बार्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकाटा। तो रेस जुडिकाटा सब रेस जुडिकाटा में फर्क ये है, एक सूट पेंडिंग है इन द केस ऑफ स्टे ऑफ सूट, और एक सूट डिसाइड हो गया। पेंडिंग की वजह से एडमिट हो सकते हैं सब्सिक्वेंट सूट, बट प्रोसीड नहीं होगा, क्योंकि जब तक पेंडिंग खत्म नहीं होता है तब तक सूट प्रोसीड नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स आर
इंपॉर्टेंट तो मेरा ये जो फ्लो चार्ट में लिख रहा हूं ये तो इंपॉर्टेंट है, बट ठीक से सुनो वर्ड मैं क्या बोल रहा हूं. सो वी कैन राइट लाइक दिस दैट इसका सेक्शन 10 का कॉन्डिशन लिख सकता हूं. सेक्शन 10 में क्या है, सूट पेंडिंग है. सेक्शन 10 में सूट पेंडिंग है, ठीक है, प्लस सब्सिक्वेंट सूट can be accepted. Subsequent suit can be accepted and suit can be accepted until and unless, ये भी बहुत important, until and unless the previous suit is disposed of. The previous suit is disposed of. तो सूट पेंडिंग प्लस सब्सिक्वेंट सूट कैन बी एक्सेप्टेड बोल रहा है, अनटिल एंड अनलेस प्रोसीड नहीं होगा, बट इट विल नॉट प्रोसीड. ये वर्ड मैंने मिस कर दिया है, ये थोड़ा इसमें लिख दो, इस साइड में लिख दो, बट इट विल नॉट प्रोसीड अनटिल एंड अनलेस द प्रीवियस सूट इज डिस्पोज्ड ऑफ. यही फर्क है, राइट? तो पहला वाला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया, एक्सप्लेनेशन 1. कमिंग टू एक्सप्लेनेशन 2, नेक्स्ट पेज. एक्सप्लेनेशन 2, इट इज सेइंग अबाउट कॉम्पिटेंट कोर्ट. ये मैंने पहले डिस्कस किया, सेक्शन 6 एंड 9 अब देख लो, जिसमें जुरिस्डिक्शनल पॉइंट से बात बोल रहा है, पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शंस. तो थोड़ा लाइन पढ़ लो, इसमें क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोविजंस एज टू राइट ऑफ अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट. तो जो कोर्ट डिक्री देने में कामयाब है, जिस कोर्ट को पावर है एक डिक्री पास करने का, जिस कोर्ट को पावर दिया है सिविल प्रोसीजर कोर्ट, दैट सच सिविल कोर्ट हैज द पावर टू ट्राई दिस पर्टिकुलर सूट बाय वर्च्यू ऑफ एक्सरसाइजिंग द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड पास अ डिक्री. तो वही कोर्ट डिक्री पास कर सकता है, दैट इज सेटिस्फाइड. सो कॉम्पिटेंसी लेवल आप कैसे देख सकते हो, उसका पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन पहला बात, और वेदर द सूट कैन बी टेकन कॉग्निजेंस एज गिवन इन सेक्शन 9. नेक्स्ट 3 number point, admitted or denied. Admitted or denied, ये word important. Expression 3 is saying that the matter above referred to must in the former suit have been alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other. तो जो former वाला सूट है उसमें जो पार्टी कुछ ना कुछ तो एलेज किया अगेंस्ट अदर, और एक पार्टी कुछ ना कुछ तो डिनाई किया, वही पार्टी वही सेम चीज लेके फिर से सब्सिक्वेंट सूट में दोबारा एलिगेशंस दे रहा है और डिनाई कर रहा है. तो वही एडमिटेड डिनाइड जो फॉर्मर सूट में भी था वही सब्सिक्वेंट सूट में है, तो दिस सूट शैल बी बर्ड. बात समझ में आया? नेक्स्ट कम्स एक्सप्लेनेशन 4, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सप्लेनेशन 4 दैट इज टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा. व्हाट डज इट मीन? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का मतलब है यू कैनॉट स्प्लिट द क्लेम्स. You cannot split the claims. Suppose take an example. I am a landlord and you are a tenant. I have given you a premises on rental basis. You are paying a rent of 5,000. For 2 years you have not paid the rent, but you are in possession of that property. कितना होता है सर? 5 into 12 करो तो आपका हर साल में आपको मुझे 60,000 देना पड़ता है. अब 2 साल के लिए मैंने नहीं दिया तो 1,20,000 आपसे पेंडिंग है. आई एम फाइलिंग अ केस अगेंस्ट यू फॉर रिकवरी ऑफ द मनी, रिकवरी ऑफ द रेंट. तो मुझे जब केस करना है
मैं पूरा 1,20,000 के ऊपर ही मैं केस करूंगा क्या? 60,000 इस कोर्ट में और 60,000 दूसरा कोर्ट में? क्या 1,00,000 इस कोर्ट में, 20,000 उस कोर्ट में? दैट मीन्स आई एम स्प्लिटिंग। जब मैं केस कर रहा हूं तो मुझे पूरा ग्राउंड ऑफ अटैक, मेरा एलिगेशंस पूरा होना चाहिए। आई कैनॉट स्प्लिट माई एलिगेशंस एंड फाइल दैट पर्टिकुलर केस अगेंस्ट द सेम पार्टी in different courts. That will make multiple proceedings which will not only harass the court but there will be a delay in justice also. तो constructive res judicata आप नहीं कर सकते हो अलग अलग से। It also may appear in representative suit also. मान लो मैं 15 आदमी का बिहाफ में मैं लड़ रहा हूं, I am representing the particular suit. तो जब कोर्ट डिक्री दे देगा मेरे फेवर में, वो डिक्री सबके ऊपर बाइंडिंग है, ये नहीं है अलग अलग। तो वो जब अलग अलग मान लो फिर से अलग अलग मामला किया, दैट विल बी अगेन causing the principles of res judicata. The subsequent suit filed by any of the person on whose behalf I filed previously and a decree was obtained, that particular subsequent suit will be barred by the principles of constructive res judicata. So constructive res judicata मतलब आप अलग से क्लेम्स को स्प्लिट नहीं कर सकते हो, ठीक है? सो यू कैनॉट स्प्लिट क्लेम, मतलब ग्राउंड ऑफ अटैक, ग्राउंड ऑफ डिफेंस आप स्प्लिट नहीं कर सकते हो। इसके साथ रेफरेंस है ऑर्डर 2 रूल 2, डिफरेंस भी आपको मिलेगा। आई एम रीडिंग एक्सप्रेशन 4। Any matter which might and ought to have been made ground of defense or attack in such former suit shall be deemed to have been in matter directly and substantially in issue. आप जब रेस जुडिकेटा सेक्शन पढ़ोगे उसमें क्या लिखा है देखो, नो कोर्ट शैल ट्राई, क्या बोला? नो कोर्ट, सब्सिक्वेंट कोर्ट का बात बोल रहा है, सब्सिक्वेंट सूट जो ट्राई कर रहा है। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन व्हिच द मैटर इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली in issue has been directly and substantially in a subsequent suit or in a former suit. तो जो मैटर अभी मैं फाइल कर रहा हूं उसका जो इशू, उसका जो पार्टी, उसका जो क्लेम्स, उसका जो एलिगेशंस, सेम टाइटल, एक प्रीवियस केस में ऑलरेडी वो मैटर खत्म हो गया, डिक्री दे दिया, फिर से मैं दोबारा क्यों करूं? ऐसा कोई करता नहीं है, बट कोई भी मान लो किसी के पास ज्यादा पैसा है और हैरेस करने के लिए कर दिया, नहीं तो क्लेम को स्प्लिट कर दिया। पैसा भी बोल सकते क्या मैं इसके अगेंस्ट में 50,000 के लिए इधर केस किया, उधर में 70,000, बट इशू इज सेम, ट्रांजैक्शन इज सेम, यू कैनॉट डू दैट। तो आप लिख सकते हो क्या? अटैक डिफेंस should be taken in one suit. Right. Now coming to explanation 5. What it means? Explanation 5 is saying about relief. So in explanation 5, any relief claimed in the plaint which is not expressly granted by the decree shall for the purpose of this section be deemed to have been refused. कोर्ट ने मान लो कोई रिलीफ आपको नहीं दिया तो इसका मतलब आप नहीं मांग सकते हो क्योंकि आपको नहीं दिया हुए। बट ये उल्टा है, मान लो कोर्ट को, जैसे मान लो जब प्लेंट फाइल करता है तो डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है उसके अगेंस्ट में जवाब। तो मान लो प्लेंटिफ का जो एलिगेशंस प्लेंट में दिया है डिफेंडेंट ने स्पेसिफिकली डिनाई नहीं किया वो एलिगेशंस, that would be accepted as the defendant has done the act, the defendant has done the commission of that act. तो आपका तरफ से आपको स्पेसिफिकली डिनाई करना ही पड़ेगा, आपका तरफ से आपको स्पेसिफिकली डिनाई करना पड़ेगा। सो यू हैव टू स्पेसिफिकली डिनाई वॉट एवर एलिगेशंस मेड बाय द प्लेंटिफ। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मान लो कोर्ट आपको कुछ रिलीफ नहीं दिया,
इसका मतलब कोर्ट आपको देना नहीं चाहता है, तो फिर से नहीं मांग सकते हो। मतलब मान लो जो प्रीवियस वाला सूट है उसमें आप कोई डिक्री मांगा था, कुछ इंटरेस्ट वगैरह मांगे था, कोर्ट ने आपको नहीं दिया, आप सब्सिक्वेंट सूट नहीं फाइल कर सकते हो उसके बेसिस में, क्या मुझे रिलीफ इतना देना था बट कोर्ट ने मुझे नहीं दिया है, बिकॉज कोर्ट हैज प्लानली रिफ्यूज दैट। तो ये आपको देखना पड़ेगा सेक्शन 34 ब्रैकेट 2, इसका इंटरेस्ट बोल के प्रोविजन से उसमें लिखा है कोर्ट एक बार रिफ्यूज कर दिया, इसका मतलब कोर्ट जब उस बात में कुछ बातचीत नहीं करते इसका मतलब रिफ्यूजल है। बट आपने कुछ बातचीत नहीं किया, आपने कुछ स्पेसिफिकली डिनाई नहीं किया, तो उसको माना जाएगा आपने किया है। तो इंटरेस्ट के बारे में, और इसके साथ साथ आप रिलीवेंस देखोगे ऑर्डर 8 रूल 5 में डिफेंस डिनाइल, डिफेंस एंड डिनाई के बारे में लिखा है। कमिंग टू एक्सप्रेशन नंबर 6, expression number 6, it is talking about representative suit। मैं कंपनी चलाता हूं, मैं डायरेक्टर हूं, मेरे सब एम्प्लॉय का बीएफ में मैं कोर्ट में केस किया, इसका मतलब क्या? आई एम रिप्रेजेंटिंग द होल एंटायर कंपनी, आई एम रिप्रेजेंटिंग द एंटायर एम्प्लॉइज। बाद में मान लो कोर्ट ने डिक्री दिया कंपनी का फेवर में, बट उस डिक्री से कोई भी मेरा एक मेंबर खुश नहीं है, वो दोबारा जाके फिर से सूट किया वही सेम टाइटल में, कैन द सूट सस्टेन इन द सब्सिक्वेंट कोर्ट? नो सर, इट विल बी बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट में भी अप्लाई है, ये आपको देखना पड़ेगा ऑर्डर 1 रूल 8 सेक्शन एक्सप्लेनेशन नंबर 7। It's about decree execution. The doctrine of res judicata also will be applicable in decree of execution। तो execution क्या होता है? जब आपको एक डिग्री मिल जाता है तो उस डिग्री को रियलाइज करने के लिए आपको एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। एग्जीक्यूशन को लिए आपको एक अलग से एप्लीकेशन कोर्ट में लॉन्च करना पड़ेगा। दैट्स टाइटल एग्जीक्यूशन बिफोर द सिविल कोर्ट इन ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ रियलाइजिंग द डिग्री। और एग्जीक्यूशंस ज्यादा होता है मैटर्स में, जैसे मान लो रिकवरी ऑफ मनी, इस सब केस में आपका एग्जीक्यूशन जरूरत होता है। और एग्जीक्यूशन का तो हर एक मोड से अटैचमेंट होता है, अरेस्ट है, सेल है, ऑक्शन है, फोरक्लोजर है। तो डिक्री एग्जीक्यूशन में भी रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल हो सकता है। जो बात मान लो कोर्ट ने डिक्री में ऑलरेडी डिटरमाइन कर दिया, वो दोबारा आप वही क्वेश्चन को एग्जीक्यूशन कोर्ट के सामने नहीं ले आ सकते हो। मान लो रिकवरी ऑफ मनी का केस में कोर्ट ने डिक्री दे दिया और उस टाइम आपने जो केस के हिसाब से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आपने कोर्ट को बोला था, बट कोर्ट ने आपका मान लो बात सुन के भी डिक्री दिया है और नहीं सुन के भी डिक्री दिया, ऐसा हो सकता है। वही पर्टिकुलर क्वेश्चंस आप फिर से एग्जीक्यूशन कोर्ट के सामने नहीं ले आ सकते हो, दैट विल बी बार्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स अबाउट एक्सप्लेनेशन 8। एक्सप्लेनेशन 8 is about limited jurisdiction. It's about limited jurisdiction. See, read the provisions. What is expression 8? An issue hard and finally decided by a court. कोई भी एक इशू जो एक कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड किया, मतलब उसके ऊपर डिक्री दे दिया, मान लो an issue hard and finally decided by a court of limited jurisdiction competent to decide such issue मतलब उसका competence भी है, section 6(9) satisfied भी है, shall operate as res judicata in a subsequent suit। तो कोई भी मान लो कोई इशू एक कोर्ट जिसके पास लिमिटेड जुडिशन था और डिसाइड कर दिया, तो ऑटोमेटिकली सब्सिक्वेंट सूट विल बी बार्ड बाय res judicata। Notwithstanding, despite that such court of limited jurisdiction
was not competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised. नहीं समझ में आया सर? लास्ट पॉइंट को थोड़ा इलस्ट्रेशन देता हूं. मान लो ऐसा सर्कमस्टेंस हो सकता है, मान लो 2000 साल में जिस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन 25,000 तक था, वैल्यूएशन का जुरिस्डिक्शन मतलब पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, कितना वैल्यूएशन तक कोर्ट मैटर एंटरटेन कर सकता है? 25,000. वही जुरिस्डिक्शन 2020 में ज्यादा हो गया, कितना हो गया? 25 लाख तक. 25 लाख तक. तो जो कोर्ट 2000 साल में पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन 25,000 तक था, बट 2020 में 20 साल बाद उसका 25 लाख हो गया, तो इसका मतलब क्या है सर? जुरिस्डिक्शन ब्रॉड हो गया, बड़ा हो गया. होता है, चेंजेस होता है, जुरिस्डिक्शन बढ़ता है, कम हो गया भी हो सकता है. जुरिस्डिक्शन पहले बड़ा था, अभी कम हो गया. तो जब कम हो जाता है ना, तभी थोड़ा फैसले का बारे में प्रॉब्लम आता है. देखो, जब 2000 में 25,000 वैल्यूएशन था और वो प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट में था वो 10,000 वैल्यूएशन था, तो वो कोर्ट देख रहा था, दैट कोर्ट वाज हैविंग द पावर एंड ऑथोरिटी टू ट्राई द मैटर इन द ईयर 2000. बट जितना वैल्यूएशन बढ़ गया 25 लाख, तो अभी 25 लाख तक हुआ, इसका मतलब क्या पहले का केस वो नहीं देख सकता है? हाँ देख सकता है, क्योंकि पहला तो सर जुरिस्डिक्शन कम था, अभी ज्यादा है. तो ज्यादा ऑलवेज कम को कवर करता है, ज्यादा ऑलवेज कम को कवर करता है. तो पहले था 25,000, आज है 25 लाख. तो पहले 2000 में जो मामला देख रहा था, वो मामला 25 लाख जुरिस्डिक्शन जब चेंज हो गया तभी भी देख सकता है. बट उल्टा हो गया तो सर, मान लो 25 लाख था, अभी 25,000 हो गया जुरिस्डिक्शन, उस केस में रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकाटा. और आपको कुछ पॉइंट्स भी पढ़ना है. आई एम सेइंग ये रेस जुडिकाटा कहां अप्लाई होता है, ये 5 मिनट का डिस्कशन होगा. सो वेयर रेस judicata will apply and where not, कहां अप्लाई होगा और कहां अप्लाई नहीं होगा. देखो, it will apply on all interim orders के ऊपर अप्लाई. पहले मैं इंटरिम ऑर्डर्स का थोड़ा मतलब बातचीत मैंने किया सेक्शन जब 2 का डेफिनेशन क्लॉज ऑर्डर का डील कर रहा था, उसमें मैंने इंटरिम ऑर्डर्स बोला. तो इंटरिम ऑर्डर्स क्या होता है? वो मेंटेनेंस में इंटरिम मेंटेनेंस मांगता है, तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी, नहीं तो मेंटेनेंस का केस में भी होता है. इसमें सब रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है. इंटरलोकुटरी ऑर्डर्स में भी अप्लाई होता है. दिस इज ऑल फॉर प्रिपेयरिंग योर नोट्स. ऑर्डर 39 रूल 6 to 10 में अप्लाई होता है. रीड जुरिस्डिक्शन में भी अप्लाई होता है. हाँ, रीड जुरिस्डिक्शन में भी अप्लाई होता है रेस जुडिकाटा. एक्सेप्ट कौन सा रीट नहीं होगा? हेबियस कॉर्पस. एक्सेप्ट हेबियस कॉर्पस में अप्लाई नहीं होता है, ये रीट में नहीं होता है. सो फिर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में अप्लाई होता है. ओके, तो कहां अप्लाई होगा ना? वेयर नॉट कहां नहीं होगा? हेबियस कॉर्पस टू क्रिमिनल मैटर में नहीं होता है. माइनर्स मैटर ये नहीं होता है. ठीक है, इसका नेचर क्या होगा? नेचर ऑफ रेस जुडिकाटा मैंडेटरी है, बट कभी कभी इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस डायरेक्टरी भी है. बट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस it can be
डायरेक्टरी, इट कैन बी डायरेक्टरी। तो कहाँ कहाँ अप्लाई होगा इंटरिम ऑर्डर्स, इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स आपका सब रीड जुरिडिक्शन में एक्सेप्ट हेवियस कॉर्पस में नहीं होगा, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में भी अप्लाई होगा। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकाटा, वेयर द डॉक्ट्रिन अप्लाइड and where not. Thank you.